Very good afternoon, everyone, and welcome to today's discussion on Regulation 410, which is primarily on fees. I am CA Gaurav Garg, along with CA Deepak Bholusaria from FTAP side. We both are founders to Foundation of Tax and Accounting Professionals. And we have our panelist, CA Manmohan Khemka and CA CV Sajanji, to take us through Regulation 410. I welcome all the attendees till now: Praveen ji, Gulshan ji, Vaibhav ji, Paras ji, Rajiv ji, Subramaniam ji, Sunil Gupta ji, and Tejas ji. And Vikram Bhai has also joined. Vikram Bhai is also part of our FTAP team. He is a chairman to Direct Tax Committee of FTAP. So, guys, initially we planned, and there is certain modification in the thought process. So I will discuss with both my panelists, and if both of them will permit, then we will move it in that format. So the format which I am thinking is, initially I thought first we will take Manmohan Khemka ji. Manmohan Khemka ji will take us through the issue that he feels is there in Regulation 410, and then CV Sajan Saab will take us through the regulation. Now I am feeling it is better to go with the regulation first. If Sajan sir can explain us Regulation 410, I have the book. Start it on the link, and once Sajan sir is done, then Manmohan sir can elaborate on his point of view on the issues that members might face because of 410. Sir, if both of you allow, can we follow this format, Manmohan sir? Yeah, surely, sir. Purely as per your choice. Second thing, we will going to put this video on the YouTube. It would going to be the recorded video that we're going to put on YouTube. No live session on YouTube. So what we want at FTAP is, that we discuss regulation as an academicians and not, from any other angle. So we should not come up with, we're not going to discuss whether ICAI has done wrong or right, whether council has done wrong or right. Whether we're going to discuss the regulation and its impact or probable impact that would happen on the members. So once Manmohan sir is done with his point of view, we'll open the session for attendees. Attendees can raise their hand, and once attendees will raise their hand, we will allow them to talk. They can put their point. Again, the same request to attendees: control your emotion. If you feel there is something wrong has happened, let's analyze the impact instead of criticizing anyone on this platform. So guys, with this, now I invite CV Sajan sir to kindly take us through Regulation 410. And if sir, should I open that regulation on the screen for the benefit of everyone? If they want to read, yeah, of course, better है. हिंदी में बात करें अंग्रेजी में? So whatever is comfortable to both the speakers. Comfortable तो कोई बात ही नहीं है. लोगों को participants को क्या चाहिए बस? I think sir mix रखते हैं सर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा. क्योंकि पिछला वाला मेरा सवा घंटा तो अंग्रेजी में निकल गया, तो मुझे लगा शायद उसके बाद लोगों को मतलब ट्रैक, तुम कई बार तो मजा नहीं आता है ना. We can understand. Anyways, रेगुलेशन मैंने खोल दिया है. हाँ ठीक है, मैंने देख लिया है. So should I begin or? Yes, start sir. Okay. So basically we must understand that the code talks about 5 fundamental principles, and which we are supposed to comply with and fulfill as a matter of ethical compliance. Or against those, the code identifies certain threats that may compromise with these compliance of code, and intimidation from the client, or conflict of interest because we have personal interests of fees and other things continuing with the clients. So these are the things that drive the decision makers to elaborate on that. और उस विषय में तो फीस जब हम क्लाइंट से ले लेते हैं तो कितनी इंडिपेंडेंटली हम काम कर पाएंगे या नहीं, ये विषय बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो कोड में सिर्फ इतनी सी बात लिखा है कि जब ज्यादा
फीस एक क्लाइंट से आपके पास आते हैं तो उस पर आप निर्भर हो जाता है, तो आपको शायद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की और इंटिमिडेशन थ्रेट की सामना करना पड़ता है, और आपने उसके बारे में सोच करके उस थ्रेट को गार्ड करना है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, और स्पेसिफिक्स में अब जैसे गौरव ने दिखा रखा है कि 410.3 पे ही ये बात लिखा हुआ है कि टोटल फीस जनरेटेड फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट बाय द एक्सपर्ट इन ऑडिट represent a large proportion। यहाँ तो सिर्फ लार्ज प्रोपोर्शन बोला गया है, जहां पर वो कह रहे सेल्फ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पर ये फोन बंद कर लेना प्लीज। So the point that we are talking about is 410.34 में, और उसके नीचे एक्चुअली 4.4 में आना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की डेफिनेशन जो लिखा है वहां पर मेरे ख्याल से शायद डिबेट ज्यादा आ रहा है। वो डिबेट ये है कि व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इफ फॉर 2 consecutive years the total gross annual professional fees, जिसको डेफिनेशन दिखाया गया है टोटल फीस, अगेन और ब्रैकेट में एक वर्ड है टोटल फीस, यानी कि आगे अपनी इंटरप्रिटेशन के लिए द टोटल ग्रोस एनुअल प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट को एक शब्द में बताया गया है टोटल फीस। ये शब्द को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑडिट क्लाइंट हो या इट्स रिलेटेड एंटिटी हो, एंड रिप्रेजेंट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल फीस, यानी कि टोटल फीस रिसीव्ड बाय द फर्म एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, देन डिस्क्लोजर की जरूरत है। अब इस पे कुछ कंफ्यूजन था, शायद इंस्टीट्यूट से ये गाइडेंस भी आ गया कि भाई आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, बट वो डिस्क्लोजर देने से मतलब उतना क्लैरिफिकेशन से शायद पूरा नहीं हो पाता। डिस्क्लोजर कहाँ देना है ये वाली बात आ जाती है। फिर वहां पर ये जो रेगुलेशन बड़ा साफ है, डिस्क्लोज टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, यानी कि आपको सिर्फ एक चिट्ठी मैनेजमेंट को देनी है कि मैंने आपसे जो फीस पिछला 2 साल में लिया है वो 15% ऑफ फीस से ज्यादा है। इसमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना है द टोटल ऑफ फीस रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ऑफ माय फर्म is in excess of the specified limit in the regulations of the Institute of Chartered Accountants of India, and this is a disclosure for the purpose of statutory compliance. This is a statutory disclosure that we need to give to a client. अगर वो पूछे आपसे तो नेचुरली बताना पड़ेगा। देखो, जब आपसे हम फीस ले लेते हैं तो नेचुरली हमारी इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए हमें ये बताना जरूरी है कि अगर आपसे हम सिग्निफिकेंट अमाउंट फीस ले लेते हैं तो ये आपकी नॉलेज में है कि फीस लेने के बावजूद भी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमारी ऑब्जेक्टिव इतना है कि क्लाइंट को भी हम इतला करते हैं कि भाई देखो, आपसे हम फीस जरूर लेते हैं, बट हमारा फर्ज है कि इंडिपेंडेंटली आपका काम करना, और आपकी गलती अगर है तो उसको पब्लिक के सामने लाना। तो उस पे तो हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भले आपसे फीस आ रहे हो। तो इससे मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कल का दिन में आपकी ऑडिट रिपोर्ट में कोई गलती हो जाती है बाई चांस, अगर बाई चांस हो जाती है, देखो ये सारी कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लेंट्स के बारे में आपको कोई नहीं पूछता भाई आपने कोड ऑफ एथिक्स क्यों नहीं कंप्लेन किया। प्रॉब्लम वहां आता है जहां पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी कभी भी गलती पाया जाता है। उस टाइम देखा जाता है कि क्या आपने एज एन ऑडिटर काम करने में अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करी। उस टाइम देखा जाएगा, अगर एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करी हो तो ये कनेवेंस के साथ था, कॉम्प्लिसिटी था, या क्लाइंट को पता नहीं था, कैसे था। तो इसीलिए, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कुछ और है। अगर सपोज करो मिली भगत है क्लाइंट और ऑडिटर का,
और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इट बिकम्स ए ग्रेवर ऑफेंस। अगर ऐसे नहीं है तो बात अलग हो जाती है। तो इसकी रैशनल ये है कि क्लाइंट को जानकारी हो या ना हो, क्लाइंट के बारे, अगर आपने क्लाइंट को बता दिया, इसका मतलब है आपने हिम्मत रख दिया कि पैसे मिलने के बाद भी उसको बता रहे भाई देखो मैं तो अपना काम तो करूंगा ही करूंगा, भले तेरे से फीस ज्यादा मेरे पास आ रहे हो या इतना पैसे आ रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन की उद्देश्य ये होता है। अब आए हैं प्रोविजन में। प्रोविजन में लिखा हुआ है नो सच सीलिंग ऑन द टोटल फीस ऑफ द फर्म। यहां पर वो फर्म का लेटर जो है वो एफ छोटा वाला नहीं है, बड़ा है। would be applicable where such a fees does not exceed 5 lakhs of rupees in respect of firm including fees received by the firm। अब यहाँ पर कुछ लोगों का समझना ये है कि फर्म की पूरा साल का फीस अगर 5 लाख से अधिक आ गया तो ये वाली, ऐसे नहीं है मेरा मानना। मेरा मानना ये है कि ये टोटल फीस शब्द जो ये लिखा हुआ है, ये टोटल फीस वर्ड ऊपर से लिया जा रहा है, यानी कि दी टोटल ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट। और उससे इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है, नो सच सीलिंग। सीलिंग के बारे में बताया जा रहा है। देखो एक ऑडिट फर्म को कहीं से भी ऑडिट फीस लेने में या और कोई कमाई करने में कोई सीलिंग रोक कुछ नहीं है। यहां पर टोटल फीस जितना मर्जी आ जाए, कोई रोक नहीं होता। यानी कि अगर एक ऑडिट फर्म में करोड़ रुपए आ गया, 10 करोड़ रुपए आ गया, उसमें सीलिंग की बात करेंगे नहीं है। सीलिंग की बात वहां किया जाता है जहां पर एक क्लाइंट से आने वाले अमाउंट 1% से ज्यादा हो, तब की बात कर रहे हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन में सिर्फ सीलिंग की बात करिए, वो सीलिंग सिर्फ उस टोटल फीस यानी उस क्लाइंट के बारे में है। और ऊपर से एक सिंपल और लॉजिक हम देखें, अगर वो फर्म की 5 लाख का फीस की बात हम कर रहे हैं, सपोज करिए, तो 5 लाख रुपए का 15% तो 45,000 रुपए है। तो क्या ये कोई समझ सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट ने ये ऐसे कोई फंडा लगा दिया कि किसी आदमी ने अगर 45,000 से ज्यादा वो अमाउंट किसी से ले लिया तो डिस्क्लोज करे जाए, चिट्ठी लिखे जाए? ये कभी इसका इरादा था ही नहीं ना है। अगर ये सारा कुछ मेरा व्याख्यान सुनने के बाद भी आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग के अंदर और कमी है और जिस तरीके से और लोग इंटरप्रेट करते हैं उस तरीके से भी उसको इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स क्लैरिटी के लिए तो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्लैरिफाई करा सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि टोटल फीस सीलिंग के बारे में बता रहे हैं। सीलिंग इज नॉट ऑन द टोटल फीस ऑफ द फर्म, सीलिंग इज ओनली ऑन द टोटल फीस फ्रॉम ए क्लाइंट। एंड ऑल्सो द टोटल फीस यहाँ पर जो लिखा है वो शब्द ऊपर 4.4 का सेकंड लाइन से लिया गया है, तो वो जो शब्द को समझना चाहिए ठीक से। Therefore, the interpretation is only 5 lakhs per client and not 5 lakhs for the firm. अब इसके अलावा जो पॉइंट है, नेचुरली प्रोविजन नंबर 2 सबके लिए समझ में आ गया कि भाई बैंक से पीएसयू से आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और सेफ गार्ड्स की बात एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि अगर सपोज करो इस तरीके से एक्सेस हो गया, सपोज करिए, तो क्या हो सकता है? देखिए यहां पर बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस, यानी कि उससे पहले वाला, ए से पहले वाला उस शाल को समझना चाहिए। दो देयर आर टू सिचुएशंस, इफ द अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ 15%, शाल करने के बाद बी पॉइंट आ गया, डिस्कस वेदर आइदर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन माइट बी ए सेफगार्ड। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात हमें सेक्शन 120 में जाना चाहिए। सेक्शन 120 में ये कहीं लिखा नहीं है कि भाई जितनी भी थ्रेट्स है या वो थ्रेट्स आपको ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, यार उसमें सब में ये पॉसिबल थ्रेट हो तो उसमें सब में सेफगार्ड लेना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लगता है, बिकॉज देयर इट टॉक्स अबाउट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म रिव्यूइंग द पॉसिबल थ्रेट्स, अगर आपको लगता है कि थ्रेट्स है तो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट सम पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्रेट्स। अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्रेट में से वाकई में थ्रेट है आपको, तो नेचुरली प्रायर टू द ऑडिट ओपिनियन या तो आप प्री इश्यूएंस रिव्यू कराइए किसी और से या पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू कराइए, ये दोनों ऑप्शन है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट आपका अमाउंट एक क्लाइंट से नहीं है फीस पे,
तो देन इतनी ये प्री इश्यूएंस या पोस्ट इश्यूएंस की बात आती नहीं है, क्योंकि थ्रेट एलिमेंट आपको खुद आप असेस कर सकते हैं, देयर इज नो थ्रेट। और पर्टिकुलरली सपोज करिए आपकी सिस्टम, और उसमें 120 में जाकर के आपको देखना चाहिए हाउ डू यू डिसाइड थ्रेट। वो थ्रेट का डिसीजन वहां पर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑडिट फर्म। अगर आपकी ऑडिट फर्म के अंदर बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, यानी फर्म की साइज की बात नहीं कर रहे, ऑडिट प्रोसेस आप क्या फॉलो करते हैं। इन अदर वर्ड, सपोज करिए आपकी फर्म के अंदर आपने ऑडिट लेते वक्त क्लाइंट के साथ बढ़िया सा कम्युनिकेशन शुरू से करता गया, और ऑडिट जितनी भी पॉइंट्स, वो सारी पॉइंट्स को आपने पहले रेज किया हुआ है, वहां से आंसर आया हुआ है, उसके बाद आप कंसिडर्ड ओपिनियन ले रहे हैं, सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इन अदर वर्ड्स, आप बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो। तो उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जब काम करेंगे तो थ्रेट की परसेप्शन अगर किसी को होगा तब भी तो ये कागज देखने के बाद खत्म हो जाती है। So nobody would raise a point that where was a threat. I was doing everything as independent as possible from a chartered accountant, regardless of the fact that I am getting more money from this way, and my records prove that, and this is the way I have been doing the work. अगर वो पिछला 2 साल का ऑडिट रिकॉर्ड से आप साबित कर सकते हैं कि भाई you have been so independently working on your job, then nobody would say that no, in the third year there was a threat. थ्रेट एक्सिस्टेंस की सबूत वहां पर है जहां पर आपने अपनी ऑडिट प्रोसेस को ऑब्फुस्केट कर दिया, यानी आपका क्लियर प्रोसेस नहीं है। तो फर्म का another point that they are talking about is if the firm is new firm, yes, if it's an existing firm with a reputed track record, then again it says that the level of threat would differ. So what does it mean? That means it is not all across the board for everybody. These are only safeguards, only for the purpose of ensuring that a chartered accountant, because he is taking a little extra money, doesn't dither on his duties. That's it. इसका objective बड़ा साफ है. If you want to ask anything more, you can ask me. Hello. Hello. Yeah, यही है सर हम. Yes, sir. Sir, I'm saying before coming to Manmohan sir, there are few questions. Okay. One question is ये जो 2 years वाला जो period हमें लेना है, ये 1st July से count होगा, मतलब from 1st July 2020 onwards 2 years देखें, या continuing client में? नहीं, ऐसा है, अगर 2000 जुलाई के बाद आप ऑडिट करेंगे, 2020 ये जो साल अभी चल रहे 20-21 की ऑडिट आप करेंगे, तो नेचुरली 18-19 का और 19-20 का आप ऑडिट करेंगे अभी, तो 17-18 का और 18-19 का आप देखें, 17 और 18-19 में आपकी फीस बहुत ज्यादा था और सिग्निफिकेंटली ज्यादा था। तो थर्ड ईयर फाइनलाइज करने से पहले एक बार आप चिट्ठी लिख दीजिए उनको कि भाई मेरे फीस, उसमें कोई अमाउंट कुछ नहीं लिखना होता है, कि यू कैन सिंपली से as per the regulations of the Institute of Chartered Accountants of India, I am required to communicate to whenever I exceed the specified limit mentioned in the Code of Ethics of the Institute of Chartered Accountants of India, that I have exceeded that amount. So since you being my client falls in the category, I am giving this as a statutory disclosure. This is for information. That's it. However, it may be noted that all आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ जी बोलिए सर, हमें 15% तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना कम्युनिकेशन के अंदर? कुछ नहीं है स्पेसिफाइड लिमिट 15% हमारे लिए इंटरनल लिमिट है ना, आप तो स्पेसिफाइड लिमिट बोलिए बस, दैट्स ऑल। आप करें कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स में एक रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आ रहे हैं आप, उसलिए हम कर रहे हैं, दैट्स इट। सर, एक अनदर क्वेश्चन है, how you define audit client? Only statutory audit or will it going to include tax? No, all audits. Certifications 15 CA CB form 3 CB. देखो, ऑडिट क्लाइंट के अटेस्टेशन सर्विसेज आप कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है, तो नेचुरली ऑडिट क्लाइंट का मतलब अटेस्टेशन सर्विस एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेशन चाहे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है, तो अगर आप सिर्फ ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो नहीं आना चाहिए। सर, क्या इसमें इंटरनल ऑडिट भी आएगी? बिकॉज इंटरनल ऑडिट में फिर इंडिपेंडेंस का कांसेप्ट तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना? नहीं, ये तो वो उसकी बात कर रहे हैं, एश्योरेंस सर्विस की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनल ऑडिट है, फिर वो क्या, मेरा मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है, जो क्या मैं उसको ऑडिट क्लाइंट बोलूंगा अगर मैं सिर्फ उसके लिए इंटरनल ऑडिट करता हूं तो? Internal audit is not an audit client. It is not an independent assurance. No, you are not giving any opinion about the true and fair of the value. Right. So sir, we have received certain queries from our participants. बताइए ना, पूछिए, वही क्लैरिटी। देखो, अब आप थियरी सबने पढ़ लिया, मैं ज्यादा बोलते जाऊं फायदा नहीं है ना, तो वो तो आप पूछिए, सवाल पूछिए, तभी तो मजा आएगा ना।
Vikram bhai, if you can raise your point. Vikram, just let me allow you to speak. Vikram ji, what's your query? Sir, definition and inclusion of related entities. Sir, दोनों करा हुआ है. देखिए एक जगह पर what they have done is they said that fees received from the audit client and its related entities. In other words, the purpose is very simple. Suppose you are thinking of breaking up the fees in such a way that it is routed to related entities, then that should not be a way to do it. So therefore, you have to take into account. Second point is that, of course, we know that there may be a group of the units, and if the audit client is the flagship company, and there are so many other subsidiaries or small units that are, of course, audited by you, then naturally you are depending on the whole of the group for your survival. And therefore, the collective fees has to be taken. So therefore, if you are doing audit for a particular client, all the fees that is collected from all the units under that group has to be taken into account. So that is number related one. Number two party is, का ये समझ रहे थे सर, related entity की कोई definition specifically दे रखी है या नहीं? related entity की definition में तो under common management आने चाहिए. अब उसमें joint subsidiary हो, joint venture हो या associates हो, वो आ सकता है. What we have to see is that who are is it under the common management or not. That's it. सर मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है. मेरे एक क्लाइंट हैं जिनकी 16 प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स है और उनकी मैं टैक्स ऑडिट करता हूँ. 16 अलग-अलग लोगों की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और सारे के सारे एक ही घर में रहते हैं और एक ही फैमिली के हैं. नहीं आता प्रोप्राइटरशिप अलग-अलग आपस में रिलेशनशिप वो तो ग्रुप नहीं आता. हाँ बस थैंक यू सर. ब्लड रिलेशन है तो नहीं आता है. नहीं blood relationship or related party has been defined in accounting standards also as well as in Companies Act also. So that related party definition has to be seen. नहीं ऐसा है. related party definition AS 18 में जो लिखा हुआ है वो AS 18 की related party transaction का disclosure के लिए है. हम उसको एक stressed meaning देने की कोई आवश्यकता नहीं. यहाँ पर आप audit client की बात कर रहे हैं तो common management है. ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई दो अलग-अलग लोग दो प्रोप्राइटरशिप करते हैं. सॉरी भाई आई इंटरप्ट कर रहा हूँ. एक सेकंड. यहाँ पे वर्ड है रिलेटेड एंटिटीज नॉट रिलेटेड पार्टी. तो कैन रिलेटेड AS18 में वर्ड रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड एंटिटी वही कह रहा हूं. तो वो नहीं है. I am of the view it needs to be defined. it needs to be defined. ये फिर डिफाइन होना चाहिए था प्रॉपर्ली. नहीं वो ठीक है. वो अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंफ्यूजन हो सकता है तो naturally you should take it up with the institute for clarification. So now let's move on to another question from Manas. Manas, I am allowing you to talk. Manas, you can speak, please. You can put your point. Please do ask me. Sir, my question is that this 15% limit has to be checked for 1 year or both years together? No. See, gross fees 15% का मतलब तो दोनों साल का और दोनों साल का हो जाएगा ना ब्रदर. वो तो एक साल का लेगा तो एक साल का लेगा तो एक साल का ग्रॉस फीस और उस साल का 15% हो गया. 2 साल के लिए तो दोनों साल का ग्रॉस फीस और 15% हो गया. बात तो एक ही हो गया ना. तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि से एक साल में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ था और एक क्लाइंट की फीस 15 लाख रुपए थी जी. तो उसमें मैं वो लिमिट में वायलेट कर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. इस साल में आता हूँ और मेरा टर्नओवर हो गया 3 करोड़ और मेरी इस क्लाइंट से फीस 15 लाख रुपए ही है. कंसेक्यूटिव ईयर नहीं हुआ ना. नहीं आता. 2 कंसेक्यूटिव ईयर तो हुआ नहीं. हाँ तो नहीं हुआ तो मुझे क्लाइंट को बताना है नहीं बताना? कोई जरूरत नहीं. 2 साल कंटिन्यूअसली आ गया तब की बात कर रहे हैं ना. 2 years कंटिन्यूअसली. ठीक 2 years कंटिन्यूअस कर दिया तो तीसरा साल में ऑडिट करने से पहले आपको डिस्क्लोज करना है. यानी कि जिस साल में हम ऑडिट कर रहे हैं पहले उस साल को एक बार साइड में रखेंगे और उससे पिछले 2 सालों में देखेंगे. कंसेक्यूटिवली उन 2 सालों में इंडिपेंडेंटली दोनों सालों के अंदर उस क्लाइंट की वो 15% का जो थ्रेशोल्ड है वो मेरा वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है. जी. Now, Praveen, you have some question. I'm allowing you to talk if you can raise your point. Sir, whether GST audit will be covered in this or not? GST audit का वो again कोड में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है. ऑडिट क्लाइंट्स लिख दिया उन्होंने और ऑडिट सर्विसेज को पूरा डेफिनेशन में नहीं लाया है. तो मेरे ख्याल से तो आना चाहिए because we are certifying the true and fair of the accounts there also, so it should come because tax audit अगर आ गया तो GST क्यों नहीं.
Right. I mean, all type of audits are concerned. Yeah, all assurance. But sir, यहाँ पे मैं एक point रखना चाहूँगा. Let's talk when we talk about tax audit, right? So there are two tax audit. One is 3CB and one is 3CA. When I talk about 3CB, I am definitely covering the financial part of the audit, right? But when I talk about 3CA, I do not comment anything as far as financials are concerned. That has been taken care already by an independent statutory auditor. It might be me, it might be somebody else. But when I talk about 3CA, I am only commenting upon the certain qualitative aspects which is mentioned in 3CD. So whether it will be covered by audit client or not. And same is the case with the GST audit as also. देखो उसमें तो मैं इतना कहूंगा कि भाई वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे भी फॉर्म बनाया है उनका सोचना ये था कि 3CA के अंदर तो जब ऑलरेडी कवर्ड है एक ऑडिट रिपोर्ट से तो नेचुरली उसको रेपिटेशन क्यों करें, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्रॉस रेफर कर दिया कि चलो वहां से कर दिया. बट 3CB के अंदर तो ऑब्वियसली जब वहां पर कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट नहीं था तो इन्होंने यहाँ कवर कर दिया. सो बट ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर बोथ द पर्पस दी 3CB 3CA का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन हम असर्टेन कर रहे हैं और कंप्लायंस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन हम सर्टिफाई कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑडिट एविडेंस की बात हम कर रहे हैं और कंप्लायंस ऑफ द लॉ की बात कर रहे हैं और ऊपर से हम एनेक्सेस भी दे रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो तो 3CB हो या 3CA हो तो बात सेम है. So thanks sir. Let's move on to Manmohan sir for his point of view. Manmohan sir, आपका session. Should I open the regulation? Would you like to get the regulation open? Yeah, नहीं मैं if you kindly permit, may I share my PPT? Sure sir, sure. On the subject. हाँ ठीक. मैं आपको allow करता हूँ sir एक बार. All panelists. Now sir, you can share your screen. Is it visible, sir? Yes, sir, visible, audible, everything is going good. You can start. Yes. So, sir, this 410456 हो क्या रहा है गौरव जी and all the participants? I am first of all place my thanks to the team FTAP and my co-speaker Sri CV Sajan ji and all the participants to devote your valuable time and inviting me for this discussion. हो क्या रहा है गौरव जी कि 5 ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए हैं जो हम बरसों से करते आ रहे हैं. 70 years से we are working for that 5 objectives whenever we are doing audit and assurance function, and not only that, whenever we are rendering other services हम उन 5 objectives को follow कर रहे हैं. Then definitely कुछ थ्रेट्स होती हैं, बट इस नए कोड ऑफ एथिक्स में जिस तरीके से बहुत सारी जगह पे थ्रेट्स एज्यूम की गई हैं और फिर उसके ऊपर रेगुलेशन इंपोज किया गया है, ये बड़ा ही एब्सर्ड है और अनवारंटेड है. क्योंकि आज का डिस्कशन पैरा 410 से है, मैं केवल पैरा 410 तक अपने डिस्कशन को कंट्रोल करके रखूंगा और उसी के बारे में बात करूंगा. पैरा 410 में भी हो क्या रहा है कि पैरा 410 के सब्सटेंस को समझने के बजाय उसके एक्सेप्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. बट माय पॉइंट इज व्हाई पैरा 410 इज रिक्वायर्ड एट ऑल. सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली द पैरा 410 जो अभी हमने डिस्कस भी किया, बट व्हाई इट इज सो. द होल इंटेंट इज बीन डिपिक्टेड by this picture only कि what exactly पैरा 410 is meant for. पैरा 410 का जो एक्सेप्शन अभी मेरे लर्नेड को स्पीकर साहब ने डिस्कस किया, सीवी साजन जी ने, प्रोवाइजो 5 लाख रुपए. तो 5 लाख रुपए चाहे टोटल फीस ले लें या 5 लाख का 15 ले लें या 5 लाख पर क्लाइंट से ले लें, क्या हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कि 15% फीस किसी क्लाइंट से 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या एक स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर को हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो एक क्लाइंट से 6 लाख रुपए साल के नहीं ले सकता? और फिर हम ये एज्यूम कर रहे हैं द बेसिक फ्लॉ इज द रॉन्ग एजम्पशंस अंडर द पैरा 410.3. पैरा 410.3 क्या कहता है कि टोटल फीस जनरेटेड फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट
पुश यू टू ए थ्रेट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन। और क्या हाईलाइट करता है कि आपका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, दैट मींस नॉट योर प्रोसेस बट योर टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म क्या है, उसकी बात करता है बहुत। और मैक्सिमम सारा स्मॉल स्केल और मीडियम जो प्रैक्टिशनर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पार्टनर, दो पार्टनर, एक प्रोप्राइटर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर है। फिर उसमें फंक्शनल डिस्टिंक्शंस नहीं है, कोई लाइन मार्क नहीं है चीजें। और फिर क्या कहता है, वेदर द फर्म इज वेल एस्टेब्लिश्ड और न्यू। इसका मतलब कि नए लोगों के लिए थ्रेट ज्यादा है, जबकि वो अभी अभी लर्निंग करके एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, या जो 20 साल के इंडस्ट्री में वर्क करके आए हैं उनके लिए तो थ्रेट है। और जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के बैठे हैं उनके साथ कोई थ्रेट रिसीव नहीं होती है। जो एजम्पशन बेसिकली है, मेरी ऑब्जेक्शन इस एजम्पशन पे ही है कि ये बिल्कुल रॉन्ग एजम्पशन है। केवल फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई थ्रेट नहीं होती। 6 लाख रुपए की फीस अगर 15% से एक्सीड कर देती है तो थ्रेट है, लेकिन 6 करोड़ रुपए की फीस अगर 15% से एक्सीड नहीं करती तो कोई थ्रेट नहीं है। ये प्रेमाइस ही रॉन्ग है और रॉन्ग इंटेंशन से लिया गया है। दिस इज माय ऑब्जेक्शन। मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पैरा के में नहीं जाऊंगा, पैरा का साजन साहब ने और आपने पढ़ ही दिया है। द फर्म शेल, तो अगर 15% से एक्सीड करती है तो फर्म के पास केवल दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कम्युलेटिवली उसको करनी है। अभी मैं एक्सेप्शंस की बात ही नहीं कर रहा, एक्सेप्शन इज इमैटेरियल, सेकेंडरी, गौण है एक्सेप्शंस का, कोई मैनर ही नहीं है। डिस्क्लोज विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, कौन लोग होते हैं दोज चार्ज विद द गवर्नेंस? द होल ऑफ द मैनेजमेंट, एंड नॉट ओनली द मालिक, द होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द होल फंक्शनल हेड्स, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस होते हैं। दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को यहां कोड में स्पेसिफिकली अलग से कोई डिफाइन नहीं किया। एक एक आदमी को सर आपको बताना है कि लुक, टोटल ऑफ सच फीस रिप्रेजेंट मोर देन 15%। क्या डिस्क्लोज करना है? बताना है 15% से ज्यादा है। ये बताना अपने आप में ह्यूमिलेशन इनवाइट करता है कि लुक, यू आर माई गॉडफादर, मैं 15% से ज्यादा आप ही से कमाता हूं। और जैसे ही वो ये बताता है, एक ह्यूमिलेशन आता है, एक दूसरी तरह की थ्रेट आती है, वो आती है नेगोशिएशन की थ्रेट। देन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट क्या होता है? डिस्कस वेदर आइदर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन माइट सेफगार्ड। एक्शन उन्होंने बता दिए, अभी एक्शन को बाद में करेंगे। किससे डिस्कस करना है? डिस्कस करना है क्लाइंट से। और अगर यहीं पे क्लाइंट कह देता है नहीं, ये जो दोनों ऑप्शन आप बता रहे हो, प्री इशुएंस और पोस्ट इशुएंस, ये दोनों ही ऑप्शन थ्रेट को खत्म नहीं करते, यू कैन नॉट कैरी ऑन द ऑडिट बियॉन्ड दिस पॉइंट सर। वन कैन नॉट एज्यूम दैट एंगेजमेंट एनी फर्दर। अगर क्लाइंट ये कहे, और क्लाइंट कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? इसका नाम दिया है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। दिस इज नॉट ए जस्ट ए पीयर रिव्यू, दिस इज ए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मुझे बीइंग ए स्मॉल प्रैक्टिशनर क्यों इतने सारे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराने चाहिए, और प्री इशुएंस कराने चाहिए, और पोस्ट इशुएंस कराने चाहिए? उसकी जो क्वालिटी रिव्यू की जो कॉस्ट है मिनिमम 20% से 40%, उसको कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा कि क्लाइंट देगा? और क्लाइंट देगा तो क्यों देगा? क्लाइंट कहेगा तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से ऑडिट करा लूंगा जिससे मुझे क्वालिटी रिव्यू भी ना कराना पड़े, और जो ये 15% की क्लॉज से भी बाहर होता हो, तो लेट मी मूव टू ए लिटिल बिग लार्जर फर्म। तो क्लाइंट कहेगा मैं डबल कॉस्ट नहीं बियर करूंगा, और अगर तुम 15% ले रहे हो तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो बड़ा कम है, तुम मुझसे ज्यादा कर रहे हो, नेगोशिएट करो, इस फीस को कम करो, और कम से कम इतनी कम करो कि ये 15% से नीचे आए। सो बोथ टाइप ऑफ थ्रेट्स, नेगोशिएशन थ्रेट्स एंड कंप्रोमाइजिंग थ्रेट विल अराइज। ह्यूमिलेशन के साथ में ये दो थ्रेट्स अराइज होंगी। मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, बट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब आप डिटेल में जाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बड़े लार्ज ऑडिट्स में एमसीए कराता है, और ये किसने करना है? दूसरे इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने करना है, आपकी फर्म का ही कोई आदमी नहीं कर सकता। अब इसकी आयरनी ऑफ द क्लॉज देखिए सर, हालांकि मैं टच नहीं करना चाहता था, बट इस क्लॉज की आयरनी देखिए। 410 में
तो आप कहते हो कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा कोई आउटसाइड प्रोफेशनल या प्रोफेशनल बॉडी। और पैरा 600 में कई सारी चीजें ऐसी उन्होंने परमिट कर दी हैं जो कि एक ऑडिट क्लाइंट के लिए हम सर्विस नहीं देते, लेकिन तब भी बड़ी फर्म्स उसको कर सकती है क्योंकि उनकी जो ऑडिट टीम होती है वो उनकी टैक्स टीम से अलग है। तो टैक्स की सर्विसेज टैक्स टीम दे देगी, उनकी और दूसरी वैल्यूएशन की सर्विस टैक्स वैल्यूएशन टीम दे देगी, जो उसमें आज मैं डिटेल में नहीं जाता। वहां उनको कोई थ्रेट नहीं लगती, जबकि की ऑडिट प्रोवाइडिंग एंटिटी लीगल एंटिटी एक ही है। और यहां इंडिपेंडेंट रिव्यू की बात करें, दिस इज एनहांसिंग स्मॉल स्केल के लिए भी और स्मॉल प्रोफेशनल के लिए भी। ये एनहांस कॉस्ट एनहांसमेंट भी है, ह्यूमिलेशन भी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू अलग से आता है इसके अंदर कि क्लाइंट आपको ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी एलिगेट्स कर सकता है। सो द होल प्रोमाइजेस कि ये मेरे को करवाना ही क्यों चाहिए, ये मेरे लिए बर्डन और मेरे क्लाइंट के लिए बर्डन होना ही क्यों चाहिए। और दूसरी बात ये कि इफ आई एम कंटेंडेड कि मेरे पास 4 क्लाइंट रखने हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मेरे को सर्विस देनी है और मेरे को उनसे एक एवरेजिंग फीसिस लेनी है, देन होल ऑफ द आईसीएआई एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां इस तरीके की थ्रेट अज्यूम की गई है कि मैं जब भी किसी एक ही आदमी के लिए काम करूंगा तो वो थ्रेट हो जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर तो होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, होल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीएफओ की पोजीशन में एक ही ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की ड्रॉ कर रहे हैं, उनके तो सारे एक्शन का एक क्वालिटी रिव्यू अलग से होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? सर, दिस इज बीन बिल्ट ऑन ए रॉन्ग प्रोमाइस। हो क्या रहा है, एक बड़े सिंपल वे में इसको समझ लेते हैं। पैरा 410(4) कहता क्या है? 15% टोटल फीस एक क्लाइंट और उसकी रिलेटेड एंटिटीज। अभी हमने डिस्कस किया कि रिलेटेड एंटिटी ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। कोई कह रहे हैं कि AS 18 वाली लगेगी, कंपनीज एक्ट में अलग से डिफाइंड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग से डिफाइंड है, कोड ऑफ एथिक्स में डिफाइन नहीं की गई है। फिर जैसे ही डिस्क्लोजर टू दोस चार्ज विद करेंगे तो नेगोशिएशन और ह्यूमिलेशन, बिग नेगोशिएशन एंड बिग ह्यूमिलेशन। और फिर आज तक इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं किया कि ये डिस्कशन क्या क्लाइंट के साथ नहीं करना, क्या ये डिस्कशन पैरा कहता है ये क्लाइंट के साथ करना है। और अगर क्लाइंट एग्री करता है कि हाँ ये सेफगार्ड अप्लाई करने हैं, तब ये सेफगार्ड अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है नो सेफगार्ड विल वर्क, तो ऑडिट क्विट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द होल प्रेमाइज ऑफ दिस पैरा। और फिर अगेन अगले पैरा में तो सिग्निफिकेंट एक्सीड 15% की बात करता है। अगर कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद में सिग्निफिकेंट एक्सीड की बात करता है, तब वहां पर तो पोस्ट क्लैरिफिकेशन, पोस्ट इशुएंस भी नहीं कर सकते। वहां तो हर बार प्री इशुएंस क्वालिटी रिव्यू करना पड़ेगा, वहां पे बाद में क्वालिटी रिव्यू नहीं किया जा सकता। और देन हर साल ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। एक साल प्रोसेस रिपीट करने से नहीं है। पैरा 410.6 ये कहता है क्या सर? ये द बेसिक इंटेंट बिहाइंड दिस इज कि स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर जो अपने छोटे सेटअप के साथ खुश है, कंटेंटेड है, उसको तो थ्रेट है। और जो लोग एक्यूमुलेशन, एक्सपेंडिंग, इंट्रूजन, उन सब चीजों में जा रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई थ्रेट नहीं है। 6 लाख रुपए की फीस एक प्रोफेशनल ले लेता है तो थ्रेट है। 6 करोड़ रुपए की फीस एक बड़ी फर्म ले लेगी, वहां कोई थ्रेट नहीं है। ये बड़ा सर एब्सर्ड। क्या बेसिक इंटेंट है सर? स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर अपनी छोटी थाली के साथ कंटेंटेड है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यार ये रोटी दाल चावल सब्जी मिलाकर के एवरीथिंग इज एक्सीडिंग 50%। ये 15% आपके लिए थ्रेट है। अगर ये सब्जी निकल गई तो रोटी से खाना मुश्किल होगा, तो यू विल बी अंडर द थ्रेट्स एज अज्यूम। लेकिन वो कह रहे हैं लार्ज प्रोफेशनल जिसकी थाली भरी हुई है ना पूरी, उसको कोई थ्रेट नहीं है। उसको तो और 4 चीजें चाहिए, उसकी थाली में ओवरलैप हो रहा है, फिर भी उसमें कोई थ्रेट नहीं। तो चीज क्या हो रही है? जो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया, इंस्टीट्यूट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें भी लिखा है, साइलेंटली लिख दिया उसमें, वो भी आल्सो मिसलीडिंग है।
और उसमें साइलेंटली लिख दिया नहीं सेफ गार्ड बिल्ट करने हैं, कहीं उसमें नहीं लिखा कि अगर क्लाइंट सेफ गार्ड के लिए एग्री नहीं करता तो उसको क्विट करना पड़ेगा। तो द होल डिस्कशन इज सर ये छोटी थाली बड़ी थाली का है, ये एक स्ट्रेटेजी है स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स को। आज हो क्या रहा है, छोटे छोटे टाउन्स में आज आप निकलिए, सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, अंबाला में कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस एमर्ज हो रहे हैं। वो एक सब्सटेंटिव फीस वहां के लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं। किसी एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास एक ग्रुप है, किसी के पास दूसरा ग्रुप है, किसी के पास तीसरा ग्रुप है। वो सब कहीं ना कहीं 25%, 30%, 40%, 50%, और क्योंकि वो इंडिविजुअली या अपने एक छोटे सेटअप के साथ उनको सर्विस देना चाहते हैं, तो वो अभी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो उसमें थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स को इस तरीके से कंबरसम बना दिया जाए कि छोटा प्रैक्टिशनर इनको छोड़ ही दे, और नहीं छोड़े तो कहीं ना कहीं उसको डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के अंडर ले ले। मेरा कहना यह है कि जब अमाउंट और फीस अगर किसी भी तरीके की थ्रेट क्रिएट करता है तो फिर ऐसा होना चाहिए कि 1 करोड़ से ऊपर या 3 करोड़ से ऊपर जिस भी किसी क्लाइंट ग्रुप और रिलेटेड एंटिटीज से किसी ऑर्गेनाइजेशन को फीस आती है, देन उसका जॉइंट ऑडिट एक अलग से स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर फर्म के थ्रू होना चाहिए अलग से, जिससे कि ये क्वालिटी रिव्यू का भी जो वो है ये भी एड्रेस हो जाए और टोटल सेफगार्ड हो जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और कोई डिस्कशन हो और कोई इशू हो, आई एम अवेलेबल हियर फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू सर वेरी मच। अब हम एक काम करते हैं, ये हम जो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द प्रेजेंटेशन। आप अपनी स्क्रीन सर एक बार, हाँ जी, थैंक यू सर। नाउ विल open the session for our participants so they can ask their questions. I think there are certain queries from Abhiroop. We can take that up. Let Abhiroop answer. Abhiroop, I am allowing you to talk. Just give me a moment. Abhiroop, you are on. I would request आप पहले पैनलिस्ट का नाम बोलें कि आप जो क्वेरी है वो किसके लिए कर रहे हैं, और फिर अपना क्वेरी पूछें। अभिरूप। Yes, sir. So my query is from Sajan, sir. Sir, please, I would want to know the rationale, as the other speaker would have said, that of introducing such a clause in the code of ethics. So basically, I'm a CA who's been into practice for last 4 years. Okay. I have my own firm. I'm an independent practitioner. Sir, okay. To my experience, all of you are senior. I understand. To my experience thus far has been that there are 3 major challenges which I face in acquiring new businesses as my clients. The first is to tap the new businesses and approach them with an offer that I will do your audit. The second is to convince them about my expertise and the ability which I have, that I can handle their business, I can handle their audit with my team, and I do have that ability. The third is, on the basis of these discussions, to quote a fees to the client and convince him that this fee is sufficient for him to give me, so that I can give my services without any hiccups. Now, when the condition is posed upon me that I need to inform those charged with governance that, okay, the fees I'm charging from you is more than 15%. So there's a certain review which needs to be done on my work, whether I'm doing it independently or not. Now this, sir, again, for the client, he's already, you see, making a new decision on his part, that instead of giving his audit to a larger firm or an established firm, he is entrusting his work upon me, that I will carry on his audit with my independence and with all my expertise. And now when I go up to him and say, no sir, I am charging you fee which is more than 15% of my total firm fee, then again there will be a fourth thing which I'll have to convince the client of, that even if I'm charging you a lot of fees, but still I will be independent. So again, so for a new business, sir, it is already very much tough to get new clients and big clients. So it's what is your name? I heard you, brother. What is your name?
Abhiroop Agarwal. Abhiroop, see, let me start from the last point you said. Yes, sir. The 3 points that the struggle, not only you, everybody and anybody who came to practice are a struggle. That is the way our profession is. Correct. कि हर किसी को 5-6 साल तो हाथ पैर मारना पड़ता है भाई, हमने भी झेला है, सबने झेला है. Now the point is that during these 4, 5, 6 formative years of time, आप अपने आप को कैसे बनाए रखते हैं. और अगर ये बात अपना क्लाइंट के साथ आप खुल के नहीं कहेंगे कि भाई मेरा काम आपको बनाए रखने की है, जिसमें आपकी और मेरी भला उसमें है कि हम लोग बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे और जिसमें से दुनिया आपका काम को देखेंगे, हमारा काम को देखेंगे, जिसमें आपकी तरक्की होगी, हमारी तरक्की होगी. ये मैसेज जब तक आप नहीं पहुंचा पाएंगे और आप अगर समझते हैं कि फीस का कम करने से आपको काम मिल जाएगा या कॉम्प्रोमाइज करने से काम मिलेगा, तो फिर तो अभिरूप अभी तो आप काम करेंगे, 10 साल के बाद वो काम ही करने लगे होंगे नहीं. क्योंकि अगर चार्टर्ड अकाउंट्स ने मन में ये ढालना है कि मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मैं ये बात अगले मेरे क्लाइंट को बता भी नहीं पाऊंगा, तो फिर तो काम कैसे करेंगे. आप अभी आप कह रहे 4 साल का आपका हुआ है, हम दिल्ली में 34 साल से रह रहे हैं, हम यही रोटी खा रहे हैं और हमारा कोई माई बाप यहाँ नहीं था. और हमने तो, अगर हमारा नाम आपने सुना हो तो आपको पता है कि भाई कैसे हम काम कर रहे थे. तो ऐसे नहीं, इट इज योर चॉइस कि आप कैसे काम करना चाह रहे हैं. उसमें तो जल्दी पैसे नहीं आते सर. आपको अगर आपको क्वालिटी काम करना हो तो उसमें सब्र रखना पड़ता है थोड़ी सी. अगर आप अभिरूप अच्छा काम करने वालों को कौन छोड़ देते हैं भाई, ये बताओ ना. अच्छा काम करने वाले कमी होती है. अभिरूप लेट हिम कंप्लीट प्लीज. यस सर. अच्छा काम करने वाले को कोई नहीं छोड़ता. अच्छा काम करके दिखाओ तो आपको अपनाते लोग, वो आपका हर चीज के लिए वो सहमत हो जाते हैं. भागते उन लोगों से जिनमें काम की क्वालिटी नहीं है. और रही बात ये छोटे छोटे एसएमपीज को परेशानी, ये वो सारी बातें, देखो मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 5 लाख से ज्यादा का क्लाइंट नहीं है तो सही. बट मेरी क्या है, हमारी फर्म 7-8-9 लोगों का है, तो नेचुरली टोटल फीस आने पर तो 15% ज्यादा हो जाती है. तो कोई भी ये नहीं कह सकता हम निर्भर नहीं, उनके ऊपर निर्भर है. तो बात ये है कि आज की दिन में जो छोटे दुकान, ये एक देखो, आप विमर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई हमारा रोजी रोटी में आप परेशानी कर रहे हैं, पर अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहें तो एक अपॉर्चुनिटी भी तो है. क्यों नहीं आप अभिरूप हिंदुस्तान की 10 कोने में से 10 लोगों को पकड़ करके और एक फर्म बना लेते हैं. उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर करना चाहे तो. मेरे से पर्सनली बात करिए, मैं व्हाई इट इज साजन साहब, सॉरी मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ ब्रदर. ऐसे है, क्वालिटी लाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो क्वालिटी लाने के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है. छोटी छोटी फर्म के अंदर अपनी कमियां होती है. समय निकल जा चुका है. हमारी देश दुनिया की बड़ा देश में से इकोनॉमिक पावर बनने वाला है और हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है और हमें उसके साथ अलाइन करना जरूरी है. और इसके लिए कोड उस तरीके से लेवल का हो जिसमें से इट अपीयर्स टू बी एनफोर्सिंग द राइट मोरल्स ऑन द पीपल. तो आज अगर एक मौका है आपको कि भाई उसमें आप रीऑर्गेनाइज करने से आपको क्या दिक्कत हो जाते हैं. मैं इस बार हो सकता है मेरा 2-3 क्लाइंट को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है, मैं जाकर के बताऊंगा. अगर उन्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं. बट मैं नहीं समझता कि मेरी कोई नाक कटती है मेरे क्लाइंट के सामने जाके एक डिक्लेरेशन देने पर. रही बात सेफ गार्ड की, पहले तो कोड को सही तरीके से समझने की कोशिश करो. कोड सेफ गार्ड की बात वहां करते हैं जहां पर आपकी रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल का ना हो. आप 120.10 को पढ़ के देखिए और उसके नीचे वाले सेक्शन को पढ़ के देखिए. कोड कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी से थ्रेट हो सकते हैं. अगर कोई क्लाइंट से फीस ज्यादा आता है और आप उसके ऊपर ज्यादा निर्भर होता है तो पॉसिबल है कि थ्रेट की संभावना हो सकता है, थ्रेट क्रिएट कर सकता है. बट थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं आपने देखना है. और एक्सेप्टेबल लेवल को कैसे देखना चाहिए? आप निष्पक्ष रूप में, अगर एक आप ना हो, एक तीसरा आदमी इस चीज को देखेंगे तो मेरा काम को, वो कैसे मेरा काम को बताएंगे? मैंने कोई काम का कॉम्प्रोमाइज किया है? ये आपसे पूछा जाता है. और रही बात सेफ गार्ड की बात, सेफ गार्ड कंपनी ने नहीं करना होता है, ऑडिट क्लाइंट ने नहीं करना होता है, टेक्निकल रिव्यू ऑडिट क्लाइंट ने नहीं करना होता है, ना करवाना होता है. ये आपके लिए बताया गया. और टेक्निकल रिव्यू की जरूरत क्यों होना चाहिए? जब आप ढंग से काम करेंगे और आपका
भले जितना मर्जी आप फीस ले रहे क्लाइंट से, उसके बाद भी आपका काम ढंग का हो और आप अपने डॉक्यूमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि देखो मेरा काम का तरीका ये है और इट इज अकॉर्डिंग टू मी, इट इज एक्सेप्टेबल लेवल, हु कैन चैलेंज यू? तो एक है डिस्क्लोजर से काम खत्म होते हैं। सेफ गार्ड की बात तो दूर की है, कोई जरूरत ही नहीं होता। सेफ गार्ड जहां होते हैं जहां पर आपको लगता है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर ली या मेरा डर है कि भाई शायद मैं इससे ज्यादा झुकता हूं, वहां की बात कर रहे हैं। वो थ्रेट परसीव होगा तो है ना। अगर आपको लगता है कि थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहां सेफ गार्ड की बी क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी कहां आती है? तो ये सब तो बात कहने की है। और ऊपर से आप अगर देखो, मैं इस कोड में जो लिखा हुआ भाषा और उसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करता हूं, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी को एक क्लाइंट जो उसकी कॉन्फिडेंट है, अगर वो कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहा है और उसको अच्छा रिलेशनशिप अच्छा है, तो उस रिलेशनशिप के अंदर उनको एहसास दिलाना जरूरी है। ये अगर कोड हो ना हो, माय फ्रेंड, यू शुड गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। अगर जितनी भी कानून हमारे देश में है जिसकी पालन करना हमारे क्लाइंट की आवश्यकता है, जरूरत है, अगर वो क्लाइंट के साथ चाय के साथ उनको एहसास दिलाए और उसकी अंजाम उसको पता चलेगा तो वो तो अपनाएगा आपको ज्यादा। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उम्र जिम्मे पे लेते हो, क्लाइंट को एहसास दिलाता नहीं है, और ऊपर से ये सोचते हैं कि जो मेरे को भगा करके दूसरे को ले आएगा। किससे ऑडिट कराएगा वो? हमारी प्रोफेशन में किसी और से होगा? कैसे हो सकता है वो? आप अगर उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने क्वालिफिकेशन करनी है, वो मना करेगा तो भाग सकते हो आपसे? कहां जाएगा वो? नया ऑडिटर आएगा तो वो आपसे पूछेंगे नहीं? अगर ना पूछा तो आपको पता चला तो आप उसको छोड़ेंगे? कैसे हो सकता है? ये सब बेकार की बातें हैं, डर पैदा करते हैं और कुछ नहीं है ऐसा कुछ। Sir, I would like to sir, last point and then we will go to Manmohan ji for his view. Yes sir, please. Yes sir. Sir, there are few things जो भी आपने बोली सर। नंबर वन, जैसे आपने बोला कि थ्रेट अगर आपको लगता है then in that case आपको उसको टेक केयर करना चाहिए। बट इन दिस पर्टिकुलर कोड थ्रेट सर मुझे लगता है उस पर बेस नहीं है। थ्रेट मुझ पे इंस्टीट्यूट इम्पोज कर रहा है ना तो आपको थ्रेट है। इंस्टीट्यूट कह रहे हैं अगर आपका पास ज्यादा फीस आते हैं, थ्रेट है। थ्रेट है, वो तो इंस्टीट्यूट मुझ पे इम्पोज कर रहा है सर। थ्रेट के लिए सेफ गार्ड नहीं लेना ब्रदर, थ्रेट के लिए सेफ गार्ड लेना नहीं है। आप कोड को पढ़िए, 120.10 में जाइए, वहां पर लिखा है अगर आपका थ्रेट है, वो एक्सेप्टेबल लेवल पर है, तो कोई सेफ गार्ड की जरूरत नहीं है। इसमें दूसरी बात ये थी सर कि इट इज बीन अंडरस्टूड बाय मी कि इंस्टीट्यूट ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी सर्विस की क्वालिटी इज नॉट गुड। दैट इज व्हाई वो कह रहे हैं कि आप अपनी क्वालिटी ठीक से करो। अब सर मेरी अगर क्वालिटी ठीक हो रही है तो मैं ऐसे इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? हम सबने तो नया ही शुरू किया था भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई नया। नाउ लेट मी मूव टू मनमोहन सर। साजन साहब, ऐसा ही इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, आई थिंक सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपस में ना बात करके आप अपना व्यू प्रेजेंट करें, दैट वुड बी बेटर। हमने मैंने बता दिया अपने मेरे से जो सर का व्यू सुन लिया। मनमोहन सर आपका व्यू क्या है? गौरव जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यू आर ऑडिबल। साजन जी ऑडिबल सर, आप बोलिए सर। ये अज्यूम किया जा रहा है कि नया चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एज कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड फर्म्स एक थ्रेट है, उसके इंडिपेंडेंस में एक थ्रेट है, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। दूसरा, कैसे ये इंश्योर होगा कि मेरे पास 2 क्लाइंट से ज्यादा 2 साल में आते ही नहीं, और मेरा क्लाइंट कहता है कि ये जो सेफ गार्ड है ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब सेफ गार्ड। जवाब दूं? सर इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर रहे हैं मनमोहन जी, आपके बीच में आवाज, मतलब ही है अंडर विटेवर रेगुलेशन वो हमें ऑडिट असाइन कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, उसमें लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है, उसमें लिखा जाता है। मनमोहन जी 1 मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। सर आपकी वीडियो आपको बंद करनी पड़ेगी बिकॉज आपके यहाँ से। अच्छा, मैं वीडियो बंद, हाँ वीडियो बंद कर देते हैं अब, ठीक है। यस, तो सर आज मान लीजिए एक 20 साल की जॉब के बाद, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद, कंसल्टिंग फर्म के एक्सपीरियंस के बाद कोई प्रोफेशनल ब्रदर और सिस्टर ये सोचते हैं कि अब उन्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है, और पहले साल में उनके पास 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट है, और वो इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें, और इतना उनको टाइम लगता है
कि वो बहुत ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जाना ही नहीं चाहते, उनको पता है यही क्लाइंट है मेरे, मैं उससे काम कर रहा हूँ. Why this shall be? This is a restriction on the way. Unconstitutional है ये provision. This is a restriction on how one shall carry his profession. This is a unrestricted practices. क्यों मुझे ये कंपेल होना चाहिए कि मैं नौकरी तो एक जगह कर सकता हूं लेकिन प्रोफेशन करूंगा तो मेरे पास 6 क्लाइंट होने ही होने चाहिए? और who will give that 6 क्लाइंट? अगर मैं अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहता हूं, मेरा फी स्केल ऐसा है, मेरे टर्म्स ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट मानते ही नहीं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, क्या मैं करूं? तो सारे क्लाइंट छोड़ दूं या फिर अपने साथ जबरदस्ती एक क्वालिटी रिव्यूअर को अपॉइंट करूं हर बार? व्हाई दिस रिस्ट्रिक्शन शैल बी? थैंक यू मनमोहन जी. सर दीपक जी, if you have some query for our panelists. नहीं, अगर उन एक छोटी सी क्यूरी है साजन सर के लिए. जी बताइए सर. ये जो फीस है, जो ग्रॉस फीस है जी, जब मैं पिछले 2 सालों की देखूंगा, क्योंकि हम जनरली जो है कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, तो मैं एक्रूड बेसिस पे देखूंगा या मैं कैश बेसिस पे देखूंगा? या जो मेरा आपका कैश बेस है, यानी कि जो अकाउंटिंग मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी को फॉलो करूँ? बिल्कुल. और मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा मनमोहन जी, आप ठीक है, आप 2 मिनट सर, वी आर एट इट्स 4:03, FM साहब आ चुके हैं, तो 1 मिनट ईच टू साजन सर एंड मनमोहन सर. साजन सर, योर 1 मिनट स्टार्ट्स. माई पॉइंट इज ओनली दिस. देखो, क्लाइंट को अगर सिर्फ मेरे पास 2 क्लाइंट है और उससे मेरी रोजी रोटी चलते हैं, तो उस क्लाइंट को बताना कोई बुरी बात नहीं है. पहली बात, उससे मेरा नाक ना कटती है, और ऊपर से उस क्लाइंट को एहसास हम दिलाने से हम भी सतर्क हो जाते हैं, तो क्लाइंट भी सतर्क हो जाता है कि भले ठीक है ये आप मेरे लिए पूरा काम करते हैं, बट उनके काम के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. ये मैसेज होना चाहिए. और ऊपर से इससे साबित होता है कि सपोज कल का दिन में कुछ चीज होता है तो आपसे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस किया वाला पार्टी भी शामिल हो, उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर शामिल हो जाता है. अगर ये कम्युनिकेशन नहीं करता है तो केवल आप रिसीविंग एंड में होंगे, क्लाइंट नहीं होंगे. अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के बाद हो तो मिली भगत वाली बात आती है. ही इज आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल टू गाइड यू, यू नो, फोर्स यू टू डू रॉन्ग थिंग्स. दैट इज एन एडवांटेज आल्सो फॉर दिस. थैंक यू सो मच. मनमोहन सर, आपका 1 मिनट सर. सर गौरव जी एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट, ये एजम्पशन ही टोटल रॉन्ग है, रॉन्ग प्रेमाइसिस पे बिल्ट है. ये डेटरेंट है नए प्रैक्टिशनर्स को आने के लिए, चाहे वो न्यूली यंग क्वालिफाइड लोग हों या इंडस्ट्री में सर्व करने के बाद आना चाहते हो, दोनों के लिए ये डेटरेंट है. जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर हैं, जो 10 सिटीज में अपना नेटवर्क नहीं फैलाना चाहते या पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहते, उनके लिए ये डेटरेंट है. इवन अगर पार्टनरशिप में भी जा करके मैं ये काम करता हूं तो भी मुझे फंक्शनल डिस्टिंक्शन करने की कंपल्शन क्यों होनी चाहिए अगर मेरा वे ऑफ स्टाइल अलग है? प्लस द मूड क्वेश्चन इज कि मैं क्यों ह्यूमिलेट हूं. उनको लग रहा है इसमें नाक नहीं कटती. मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट एक सर्वे करवा ले कि क्या ये सब लोग अपने क्लाइंट से डिस्कस करके अप्रूवल लेके क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना चाहते हैं, पहली बात, और उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा और उसकी कॉस्ट होगी क्या अगर फ्रेटर्निटी एट ए लार्ज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. गाइस, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि आपको दोनों व्यूज पता लगे, आप और नॉलेजेबल बने इस इशू पे. आई थिंक हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो आप तक पहुंचाया है. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप दोनों व्यूज, वी विल गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, आप रेगुलेशन को दोबारा पढ़िए एंड टेक योर ऑन स्टैंड. आपको लगता है कि इट नीड्स सम अमेंडमेंट, देन यस यू कैन ऑलवेज गो टू ICI. बट हाँ, थोड़ा एक रिसर्च करके पहुंचिए. जो हम एट एन FTAP कर सकते थे वो हमने आप सबके लिए किया. मैं अपने दोनों पैनलिस्ट CV साजन साहब और मनमोहन खेमका जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरे co-founder दीपक भोलूसरिया जी जो हमारे साथ रहे, and all to my attendees who raised the questions, who make it more vibrant. Thanks guys. See you next time whenever we're going to put some another program. Thanks all of you. Thank you very much Gaurav ji. Everyone. Thank you Sajan ji. Thank you very much Deepak ji. Thank you all. Thank you brother. Thank you. Bye.